for the financial year 2024 as compared to the corresponding year of 2023. The company's revenue has increased to 29.6 billion as compared to 28.4 billion of previous year, marking an increase of 4%. The gross profit and operating profit of the company increased by 36% and 40% respectively. The company posted profit after tax of 4.4 billion as compared to 2.5 billion of previous year, having a significant increase of 74%. The earnings per share and retained earnings also increased by 74% and 32% respectively. The long-term loans has decreased to 1.2 billion as compared to 1.9 billion, and the short-term borrowings have increased to 2.5 billion, having an increase of 170%. From this financial overview, we can assess that the company's performance remained outstanding during the year. However, due to stringent economic conditions, the company has increased some reliance on short-term borrowings for working capital requirements. Now we have some of the important key performance indicators of the company. The first one is current ratio. Current ratio represents the company's ability to meet its short-term commitments. And we can see from the chart that the company has maintained a stable current ratio over the periods, which means that company has no issue in meeting its short-term liabilities. The next one is debt to equity ratio. Debt to equity ratio represents the company's financial leverage and gearing, and the downward slope represents that the company is continuously increasing equity share in its capital structure and thereby avoiding the chances of financial risk associated with long-term loans. The next one is GP margin ratio. GP margin ratio represents a company's ability to earn from the efficiency of production and sales processes, and continuous increase in GP margin ratio is indicating that the company is improving the efficiency of production and sales processes continuously. The next one is earnings per share. Earnings per share is one of the most important indicators, key performance indicator, as it links the company's performance with the shareholders' earnings, and we can see from the graph that the shareholders' earnings per share are increasing at a reasonable pace during the last few years. Now we have some important variables that are the measure of efficiencies and growth. The first one is sales. Sale is an important growth factor for any company, and we can see from the chart that the company has maintained its sale volumes over the previous year, and it indicates that the company has the ability to expand further. The next one is EBITDA. EBITDA stands for earnings before interest, tax, depreciation, and amortization, and it represents the company's core operational performance by excluding the factors which are not in the control of the company. And increasing trend of the EBITDA represents that the company's core operational performance is increasing. The next one is cash generation from operation. The cash generation from operations is representing a decreasing trend, but if we analyze it with other variables, along with other variables and ratios that we earlier discussed, we can assess that the company can increase the cash generation abilities in the future. The next one is investments. Investments are always associated with the growth, and we can see that the company has made significant investments in long-term investments. Now we have some key contribution towards the economy and well-being of the people. The company deposited more than rupees 4 billion in national treasury during the year in the form of income taxes, sale taxes, duties, and other government taxes. More than rupees 21 million has been allocated for charities and donations. The company is focused on the use of renewable energy, and solar power generation has been increased to 3.5 megawatt. The company generated more than 6,000 employment opportunities. That is a key contribution for both economy and society in the current situation of the country. The company also contributed more than $8 million in the form of exports received to foreign exchange reserves. That is a key contribution for much needed foreign reserves. Now the next slide has our strategic direction. The businesses need not only need a good performance, but they need the performance that is sustainable in the long run. Therefore, company is focused on the improvement of its business processes, investment in human capital, and on being innovative. The company has worked out its expansion strategies through investments in various glass manufacturing projects, which includes joint venture with Lucky Core Industries Limited, and acquisition of Giant Control in Balochistan Glass Limited, and introduction of new product lines. The key factors which makes us distinct
or customers association with the company, or employees loyalty with the company, or advanced information systems, and the confidence of investors and lenders vested in us. Now we have some risks, uncertainties, and opportunities available to the businesses. Businesses are always associated with the risks and uncertainties, which create challenges for the businesses, and at the same time, they provide new opportunities for the businesses to grow. Here we have listed some important risk factors and that are in relation to the Pakistan's economy. The first one is interest rates. The State Bank of Pakistan has recently reduced the interest rates, and we are expecting that these interest rates will be lowered further. As a result, it means that savings will be discouraged and people will borrow more, causing an increase in the circulation of wealth in the economy, and thereby market demand can also increase. The next one is exchange rates. Although the exchange rates are still on the higher side, but they has remained stable over the last few months, and after IMF loan agreement, we are expecting that the exchange rates will get further lowered, and we expect that our energy cost and cost of imported raw materials and plant and machinery will also get reduced. The next one is growth rate. Pakistan's growth rate has remained significantly low during the recent years. However, we are hopeful that the economy will get stable and growth rate will be increased, and as a result, market demand for goods and services will also be increased, which will provide the company opportunity to maintain its volume. The next one is inflationary pressure. The inflation figures over the last few months has a declining trend, but as we discussed that the interest rates can further be reduced, and increase in growth rate can increase the circulation of wealth, and therefore inflationary pressure may also get increased. The last one is political instability. The foremost dilemma of Pakistan economy is political instability. The political stability, economic stability is linked to political stability, and it is almost impossible for businesses to grow without a stable political environment. I hope that today's session was informative and it brought valuable insights. Thank you very much. And now there will be a question answer session. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। This is Sarwan Masood from Maple Leaf Capital. कल आपके साथ बलूचिस्तान क्लास की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में बड़ा अच्छा सेशन रहा था। अब कुछ क्वेश्चंस सारे क्लास के हवाले से हैं। अब आप तो पहले ये बताइए, जो आपका अभी सितंबर क्वार्टर गुजरा है, यानी जून जुलाई अगस्त, इसमें आप लोगों के जो 2 फर्नेसेस ऑन थे, वो कितनी कैपेसिटी पर चल रहे थे टन्स पर डे के हिसाब से? एक्चुअली ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग तो आई थिंक ये जून तक चल रही है, तो मेरा ख्याल है पहले उसको हम लोग क्लोज कर लें, उसके बाद में कोई फ्यूचर के बारे में करते हैं। अच्छा। सर वैसे हमारे 2 प्लांट्स जो इस वक्त ऑपरेशनल है ना जी, एक उसमें फ्लोर ग्लास का है, वो 550 टन पर डे की कैपेसिटी है उसकी, और एक हमारा टेबल वेयर का है जी, वो ऑलमोस्ट 200 टन पर डे की उसकी कैपेसिटी है जी। सर, आप लोगों से जब लास्ट बात हुई थी, पिछले साल हुई थी, तब आप लोगों ने जिक्र किया था इसको आप लोग कोई 400-470 के दरमियान में चला रहे हैं टन्स पर डे में, और टेबल वेयर को 150 में। तो बस ये पूछना था कि इसी स्पीड पे चलाया है या ये थोड़ा सा बढ़ा दिया है 550 की तरफ? देखिए, ये तो ऑपरेशनल कैपेसिटी है। अब जिस तरह से उसके आगे जो आर्टिकल बन रहा होता है, सपोज के जी के अब वो 10 mm का ग्लास बन रहा है आगे, तो वो मे बी के जी के वो 500 से भी अबव उसको हम थोड़ा सा बूस्ट करके चलाएं। अगर वो 4 mm 5 mm चल रहा है, तो हम उसकी कोई नॉर्मल स्पीड रखेंगे उसको, मे बी के जी के वो 470 480 पे चल रहा हो, क्योंकि उसकी आगे से पैकिंग और वो सारी नीलिंग के ऊपर उसको कंट्रोल करना होता है। तो जिस तरह का आर्टिकल बनता है वैसे उसकी स्पीड। अगर आप आर्टिकल की थिकनेस को कम कर देंगे और आप सेम पुल 500 या 520 या 550 लेना चाहते हैं, तो फिर उसका जो आउटकम है वो फ्लो बहुत तेज हो जाएगा और उस स्पीड को आगे कैटर करना मुश्किल हो जाता है। तो थिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या आर्टिकल टू आर्टिकल जो है, इसकी पोल चेंज हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, सो ये तो प्रोडक्शन के हवाले से बात हो गई। प्राइसिंग का ट्रेंड किस तरह का चल रहा है? आप लोग स्टेबल प्राइसेस देख रहे हैं या आगे की तरफ राइजिंग ट्रेंड देख रहे हैं जब डिमांड बढ़ेगी?
देखिए बैक एंड से तो प्राइसेस कंटिन्यूअसली गो ऑन इंक्रीजिंग है ड्यू टू द इन्फ्लेशन इफेक्ट, लेकिन वो सारे का सारा पास ऑन टू द कस्टमर पॉसिबल नहीं है इस वक्त, क्योंकि अगर वो आप सारा पास कर देंगे तो इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट जो है वो काफी ज्यादा ऑलरेडी डिप्रेस्ड है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपनी उसको देख रही है कि मूव भी करती है और कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब भी करना पड़ रहा है। ठीक है। और सर एक और प्लीज बात बताइए, आप लोगों का जो सेकंड फर्नेस है फ्लोट ग्लास और टेबल वेयर का, इसे ऑन करने का कोई नियर फ्यूचर में प्लान बन रहा है? दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशंस, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं कंटिन्यूसली और उसको देख रहे हैं। जैसे ही मार्केट ग्रो करती है और कोई वायबिलिटी निकलती है तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हमारी तरफ से तो फर्नेस को बिल्कुल रेडी है जी। और जी जी, आपने अब जस्ट प्रिपेयर उस तो मार्केट दुकान किया कंडीशंस था। के हिसाब से, हाँ जी। ठीक है। आप इसको ठीक। स्टील की जो कैपेसिटीज है इस वक्त, या सीमेंट सेक्टर की जो कैपेसिटीज है, उसके साथ भी कोरिलेट करके देख सकते हैं कि उसमें कितना डाउन ट्रेंड है। तो लाइक वाइज फ्लोट ग्लास भी जो है वो भी कंस्ट्रक्शन से मेनली रिलेट करता है, तो जी सर, डेफिनेटली बिल्कुल। उसी के साथ इसको आप कोरिलेट करके देख सकते हैं। सर ये बड़ा आपने रीजनेबल मेथड बताया, इसी तरह वो उसको फॉलो ही कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन में सारा। ठीक है सर, बस लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो आप लोगों ने लास्ट में बलूचिस्तान क्लास में इंडिकेट किया है कि एनर्जी कॉस्ट है 2300 के लगभग, 90% हब वाली और 10% नॉर्थ वाली, तो यहाँ पे आपको पूरा 3700 पर MMBTU पे करना पड़ रहा है? देखिए उसमें कंपनी जो है वो अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस कंपनी को मिल रही हैं उसको भी अवेल कर रही है, और एवरेज आउट होने के बाद आप समझे कि 3500 के नियर अबाउट कंपनी को कॉस्ट आ रही है। 3500 के। और सर जो पर टन कॉस्ट होती है फ्लोट ग्लास और टेबल वेयर की, वो भी काइंडली बता दीजिए। पर टन ही एक्चुअली ओवरऑल मिक्सिंग के ऊपर चल रहा है ना, दोनों को ओवरऑल हम लोग देखें, आप उसको समझ रहे होते हैं कि ये ग्लास मेल्ट होता है, अगर आप उसको टिन पे मूव करवा देते हैं तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप उसको बाया मोल्ड लेके चल पड़ते हैं तो वो आपका टेबल वेयर प्रोडक्ट बन जाता है। तो एक्चुअली मोल्ड जो ग्लास है वो तो ग्लास ही है ना दोनों फॉर्म्स के अंदर। नहीं, एक एक आप इस तरह का भी रेशो आपने जिक्र किया था कि जो टेबल वेयर है वो 1 टन बनाने में 8 या 9 MMBTU लेता है, और फ्लोट ग्लास शायद इससे थोड़े ज्यादा या कम MMBTU लेता है, तो वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी वो तो परसेंटेज एक यूनिफॉर्म है, और वो जिस वक्त आपसे डिस्कस किया होगा तो वो उसी मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगी, या उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत आप बीटा फैक्टर रख लें उस 5% का। उसमें यह है कि हमारे पास जो गैस के कनेक्शन जो यूटिलाइज हो रहे हैं वो दैट इज फॉर टेबल वेयर जो है वो 150 MCF का है, और इसी तरह जो फ्लोट के लिए है वो 215 का जो है ना MCF का है कनेक्शन जो है जो यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, ठीक हो गया सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर वेरी डिटेल्ड आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। वेलकम जी, वेलकम अस्सलाम जी सर। वालेकुम। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल डिविडेंड से रिलेटेड है। एक ज़माने में टीजीएल जो है बहुत अच्छा पे आउट दिया करता था, कभी अच्छा बोनस कभी अच्छा डिविडेंड। लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी ठीक था। लेकिन इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के बावजूद ऐसे क्या रीज़न है कि आपने डिविडेंड देना बिल्कुल बंद कर दिया है? एक तो ये बताइएगा, और थोड़ा सा फ्यूचर की पे आउट पॉलिसी को भी क्लैरिफाई करें ताकि उस बेसिस पे इन्वेस्टर्स को अपना फैसला कर सकें। थैंक यू। अच्छा देखें, ये जो अकाउंट्स होते हैं इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल आ रही होती है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, कंपनी ने उसी प्रॉफिट को फॉर द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आगे मूव भी किया है, और वहां से जो एडिशनल बेनिफिट कंपनी को मिलेगा वो भी आप लोगों को पास ऑन होगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि देखें, सेल्स जब एक दफा बुक हो जाती है तो हमारे, अगर आप रिसीवेबल्स को देखेंगे तो रिसीवेबल की अमाउंट भी छूट की हुई है, और जो हमारा पैसा स्टॉक की फॉर्म में गया हुआ है वो भी आपको नजर आ रहा होगा कि स्टॉक इन ट्रेड का जो है वहां पे वो भी इंक्रीज हुआ है। अब और कंपनी की जो भी इसकी शॉर्ट टर्म लाइंस आपको वहां से नजर आ रही होंगी वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि हमारा जो फंड्स हैं वो वर्किंग कैपिटल के अंदर ही स्टकअप हो रहे हैं। अब कंपनी ने इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये बेहतर समझा कि बैंक से इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन लेके और अपने शेयर होल्डर को देने की बजाय अगर वो थोड़ा सा वेट करके और फ्यूचर के अंदर उसको पास ऑन कर दे
तो वो मेरा ख्याल है विन विन पोजीशन होगी दोनों के लिए, मैनेजमेंट एज वेल एज द शेयर होल्डर्स। जी, यानी कि आपका ये मतलब है कि फ्यूचर में जब वो हालात थोड़े बेहतर होंगे तो यू विल कंटिन्यू विद दैट। या Why not? जी, डेफिनेटली। इंशाल्लाह। जी ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। Assalamu alaikum. जी, वालेकुम। Sir, a very good and detailed answer related to dividend. I just want to ask a few questions on related to your balance sheet. एक तो ये कि हम आपकी इन्वेंट्रीज देखते हैं तो 5.6, 5.9, 5.9 बिलियन है पिछले 3 क्वार्टर में। तो क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जितना भी आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं यू आर एबल टू सेल दैट इन द मार्केट, यानी कोई इन्वेंट्री स्टॉकअप नहीं हो रही? और अभी क्या सिचुएशन है, पहले ये जवाब दे दें फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चंस। जी जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग उसको सेल आउट करें। और अगर आप यहाँ पे उसको देख भी रहे होंगे हमारी इन्वेंट्रीज को, तो एक्सेसिव, क्योंकि पाकिस्तान जिस रीजन के अंदर है उस रीजन में पाकिस्तान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इन कंपैरिजन टू द कंपेटिटर जितने भी हमारे रीजन में है उसके साथ वो मैच नहीं करती, बल्कि हमारी कॉस्ट ज्यादा है। तो लेकिन कंपनी अपनी ऑपरेशंस को सक्सेसफुली रन करने के लिए जो एक्सेसिव होता है प्रोडक्ट उसको एक्सपोर्ट भी कर रही है। और बिल्कुल डेफिनेटली हमारा स्टॉक लेवल जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन जो ये पैच गुजरा है थोड़ा सा बैक एंड के ऊपर, उस पैच में और स्पेशली बजट की जब स्पीच हुई थी उसके बाद एक सडन मार्केट के अंदर स्लम्प आया था, कुछ इन्वेंट्री पाइलअप हुई थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात वैसे दोबारा बैक टू नॉर्मल आ चुके हुए हैं। और कंपनी की फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही है कि स्टॉक्स ना लगें और इसको मार्केट में मूव किया जाए। ठीक है। अच्छा सर, इस रिसीवेबल्स देखते हैं आपके तो सितंबर क्वार्टर पे 1.8 बिलियन के थे, फिर अगले क्वार्टर 300 मिलियन का इंक्रीज, फिर 400 मिलियन का, और अभी जो लेटेस्ट नंबर है उसमें कोई 800 मिलियन इंक्रीज है, यानी कि 3.3 बिलियन के रिसीवेबल्स हैं। तो इतना जी सडन जंप आपके रिसीवेबल्स में क्यों आ रहा है? एक्चुअली तारिक ग्लास जो है, अगर आप इसका नेचर ऑफ बिजनेस समझें तो इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्लोट ग्लास का भी है। और फ्लोट ग्लास का जो सीजन आ रहा होता है वो अब सितंबर ऑनवर्ड जो है वो उसका सीजन हो रहा होता है। और यहाँ इस सीजन के अंदर हम लोग वो मेजर जो चंक होता है वो रिकवर कर रहे होते हैं। उससे पहले क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर आप सामने रखेंगे तो फ्रॉम फरवरी मार्च ऑनवर्ड जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो ग्रे स्ट्रक्चर वो सारा कुछ मूव कर रहा होता है। और सितंबर ऑनवर्ड बिफोर विंटर हर एक की कोशिश होती है कि उसको क्लोज किया जाए। तो वहां पे ग्लास की जो है रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाती है और ये पीक सीजन कंसीडर हो रहा होता है ना। तो सेकेंडली ये है कि कॉस्ट ओवरऑल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से शूट कर चुकी है, जिसका सर्टेन पोर्शन हम लोग अपने पास ऑन कर रहे हैं कस्टमर्स को। तो आपको वो नंबर्स के अंदर वो ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर आप जाएंगे तो हो सकता है कि क्वांटिटी तो उतनी ही हो लेकिन वो उसकी अमाउंट बढ़ जाने की वजह से हाँ जी। वैल्यू यहाँ पे आपको इंक्रीज नजर आ रही है। ठीक है Same सर, like लेकिन with हम the stocks as रिसीवेबल्स well. को देखने के लिए आपके, जी जी, और अगर आप रिसीवेबल्स उस को पे देखने के लिए हमारी हम आपके रिपोर्ट के रेवेन्यू को एक, अगर आप रिपोर्ट के लास्ट में हम लोगों ने वो जो दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रेड डेज भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कोई मेजर जंप जो है वो जंप नहीं है, वो दैट इज 33। तो वो अंडर कंट्रोल लिमिट के अंदर है ना हमारा। ठीक है, राइट राइट। सर ग्रॉस मार्जिन्स पे मुझे जानना था, जैसे आपके दो सेगमेंट हैं, टेबल वेयर एंड फ्लोर ग्लास। ओवरऑल मार्जिन आपके कोई 27-28% है आई बिलीव। तो सेगमेंट वाइज अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो वो किस तरह डिविएट करते हैं, यानी फ्लोर ग्लास से आपके कैसे मार्जिन्स होते हैं और ये टेबल नियर वेयर टू से कितने होते हैं? ये क्लोज क्लोज हैं एक दूसरे के ना। तो ये हम लोग वेटेड एवरेज शो कर देते हैं, नियरली यही यही चीजें चल रही हैं, पैटर्न जो है। ठीक है। अच्छा सर, रिसेंटली आप लोगों ने बीजीएल में भी बिजनेस करना स्टार्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम उस सेगमेंट से या उस इन्वेस्टमेंट से टीजीए की बुक पे प्रॉफिट्स देखना कब से मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टार्ट होगा? लाइक सितंबर क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर, या इसके बाद हम कब देख सकते हैं कि वहां से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आएगी? देखिए अभी तो बिल्कुल स्टार्टअप है और वहां पे अभी वो जितने भी टीथिंग प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व हो गए हुए हैं। और सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द गैस, अगर वहां पे हमें गैस अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं तो इंशाल्लाह आप समझेंगे कि फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर जो है कोई बेहतरी आने की पोजीशन में होंगे हम लोग।
ठीक है, सही है, subject थैंक यू सो मच। subject to the availability of the gas. हेलो। जी मेरा सवाल है सर रिगार्डिंग आपकी जो डिमांड आउटलुक है वो फ्लोट क्लास पे कैसे है गोइंग फॉरवर्ड। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, इस वक्त आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कोई बेहतर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये सब कुछ जो है इकोनॉमी के हिसाब से ही चल रहा है। और क्योंकि कुछ जो अभी गवर्नमेंट लेवल पे जो चीजें चेंज हो रही हैं, जिस तरह उन्होंने एक नई टैक्सेशन के अंदर कहा है कि जी अनरजिस्टर्ड जो बंदा होगा, जो नॉन फाइलर होगा, वो लैंड बाय नहीं कर सकेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल हैव टू रीथिंक इट्स पॉलिसीज एज वेल, क्योंकि इससे सिर्फ एक ग्लास इंडस्ट्री नहीं, मोर देन 50 जो इंडस्ट्रीज हैं ऑफ द पाकिस्तान जो हैं वो सारी इफेक्ट हो रही हैं। और इसी होप के साथ हैं कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अब आईएमएफ वाला भी प्रोग्राम सेटल डाउन हो गया है, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि डेफिनेटली एक मेजर मेजर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी डिसीजन मेकिंग होगी और ये इंशाल्लाह बेहतर होगा। बेसिकली फिलहाल तो ब्लीक ही नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिसीज एंड स्लो डाउन इन बिल्कुल, डिमांड। हम लोग बाकी इंडस्ट्री की तरह ही मूव कर रहे हैं। देखिए, सीमेंट, स्टील, बाकी जितनी भी इंडस्ट्री मूव कर रही है, वो जो है इलेक्ट्रिक हो गया, सैनिटरी हो गया, जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी एक ही पेस पे मूव कर रही है ना। सही। सेकंड फर्नेस लाइन पे तो आपने बता दिया, इसी के साथ ही आप ऑन करेंगे फ्लोट ग्लास की जो जी 5। बिल्कुल। और डिविडेंड पॉलिसी भी आपने बताया कि गोइंग फॉरवर्ड नॉर्मलाइज हो जाएगी। इंशाल्लाह। ओके। लकी टीजी जो आपका वो जो जॉइंट वेंचर हुआ था उस पे मतलब कॉल्ड ऑफ करने का रीजन प्राइमरीली क्या था। देखिए, अगर आप ग्लास इंडस्ट्री को देखेंगे ना, तो तारिक ग्लास का भी एक फर्नेस रफली सेम कैपेसिटी का हमारे पास रेडी फॉर्म में है, और हम लोग उसको स्टार्टअप नहीं कर रहे, फायर नहीं किया। एग्जैक्टली द सेम कंडीशन विद आवर कंपेटिटर, जो कि आप समझें कि गनी ग्लास है, उनका भी एक फर्नेस है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर दोनों कंपनीज जो ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर हैं वो अपने सारे प्लांट्स ऑपरेशनल नहीं कर पा रही जस्ट बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द मार्केट डिमांड, तो हम लोगों ने उस डिसीजन को खत्म नहीं किया, होल्ड पे लगाया है। अनलेस कि मार्केट जो है वो दोबारा रिवाइव करती है, तो सबसे पहले तो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज हैं वो ऑपरेशनल होंगी ना। तो जब ये सही ऑपरेशनल हो बेसिकली। जाएंगी तो उसके बाद आप एक ये कोई छोटी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आई थिंक रफली जी 25-30 बिल्कुल बिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट है। तो एक बिल्कुल और बिल्कुल। प्लांट लगा के, और अगर उसको भी बंद करना है तो फिर तो ये फायदा नहीं नहीं ज्यादा है। वायबल है कि आप उसको होल्ड पे लगा दें ना। कॉस्ट कॉस्ट ऑन कैपिटल ही है बेसिकली। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स पे मार्जिन होती हैं वो किस तरह होती हैं, कम होती हैं या फिर ज्यादा होती हैं, किस तरह होती हैं लोकल मार्केट से। देखिए, रीजन टू रीजन जो है वो वेरी कर रहा होता है, कहीं अच्छा भी रेट आ रहा होता है, और क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर रिलेटिवली आपने compete करना होता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज को। तो मेरा ख्याल है अगर हम नेबरिंग कंट्रीज में देखें तो वहां पे जो यूटिलिटीज की प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है, और ग्लास में जितना रॉ मटेरियल का कंपोनेंट है, मेरा ख्याल है उससे ही नियर अबाउट उतना ही मेजर कंपोनेंट जो है वो यूटिलिटीज का है, जिसमें सही। गैस, फर्नेस ऑयल और ये चीजें हैं। अनलेस के इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट लेवल से कोई चीज नहीं मिलती, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में उसको उस लेवल पे जाके compete नहीं कर पाते। तो अगर सही आप तो वही देखेंगे कि हमारा एक ट्रेंड भी देखेंगे कि हम लोग रफली 95%, 90 से 95% के दरमियान लोकल मार्केट के अंदर होते हैं, और ऊपर वाला जो एक्सेसिव पोर्शन होता है हमेशा हम लोग वो 10% के नियर अबाउट ही एक्सपोर्ट मार्केट में जा रहे होते हैं। सही। कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप उनकी भी हिस्टोरिकल फिगर्स को, अगर आप उसके क्वार्टर्स वगैरह को सामने रखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया था। तो ऑनवर्ड जो क्वार्टर्स के अंदर उनकी एक्सपोर्ट भी डिप कर गई है इसी वजह से ना। हम्म। मेरा सर एक लास्ट सवाल है, वो है कि
ये फ्लोट ग्लास की ओवरऑल मार्केट साइज क्या है अभी करंटली? अभी करंटली आप समझे कि 20,000 के नियर अबाउट है जी, 22,000 टन्स पर मंथ पर मंथ? जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Assalamualaikum, sir. Am I audible? Can I go forward with my questions? जी प्लीज। बस ये तो आपकी बात समझ आ गई कि एक्सपोर्ट्स में तो ऑब्वियसली हम लोग कंपेरेटिव नहीं है। हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, फ्लोट की मार्केट है वगैरह, उसमें स्मगलिंग, क्योंकि वी सीन दिस इन लॉट ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, लॉट ऑफ अदर बिजनेसेस एज वेल, कि जो बिजनेसेस अबाइड कर रहे हैं, सेल्स टैक्स दे रहे हैं वगैरह, वो सारा सब कर रहे हैं, उनका बिजनेस मॉडल ही काफियों का वायबल नहीं रहा है, बिकॉज स्मगलिंग का काफी ज्यादा एक इनटेक आया हुआ है। तो ये जो फ्लोट ग्लास की आप और गनी की जो मार्केट है, इसमें कोई रिस्क है कि कोई स्मगलिंग होगी, या कोई फ्लोट ग्लास का कोई चाइनीज ने कोई आके प्लांट वगैरह लगाया है? इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ दैट कंपटीशन? इन अदर वर्ड्स, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मार्केट शेयर आप लोगों ने, लोकल प्लेयर्स ने मेंटेन किया हुआ है, या वहां भी कोई कोई मसला आ रहा है कि कोई डंपिंग या उस तरह का कोई रिस्क है? ये जनरली एक होना चाहिए हमारे माइंड में एज इन्वेस्टर्स, रिस्क के कोई स्मगलिंग या इनफॉर्मल सेक्टर का कोई मसला आएगा। देखिए, ये स्ट्रक्चर सेक्टर ही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ्लोट ग्लास की जो प्रोडक्शन में है, और डेफिनेटली स्मगलिंग आप उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं। और हमें कुछ पता चला था, इसीलिए हमने SIFC के साथ इन टच हैं, उनको लिखा भी है, स्पेशली फ्रॉम ईरान पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो हम लोगों की अपनी रिजर्वेशंस थी, हमें कुछ आइडिया हुआ था, और हम लोग ऑलरेडी इन टच हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी फ्यूचर के अंदर जाके। लेकिन आप 100% इसको सर कर्टेल थोड़ा नहीं वो कर क्वांटम प्लीज, सकते, सॉरी। आप 100% इसको नहीं सर, आप प्लीज कर्टेल नहीं कंटिन्यू करें। कर पाएंगे। और रफली आप समझें कि फिलहाल अगर आप रिज्यूम करना चाहते हैं कि 5% तक जब मूव किया था, तो हम लोगों ने कंसर्न रेज कर दिए थे। तो सर इसमें कोई स्लो डाउन आ रहा है, और ये आप लोगों के प्राइसेस को तकरीबन कितने अमाउंट से अंडरकट कर सकते हैं? देखिए, अगर आप इसकी कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारी जो मेजर कॉस्ट आती है वो फ्यूल एंड पावर की है। वो वेरी कर रही है, होती है रफली 40 से 48%, 47% तक वेरी कर रही है। अब वो चीज जो हमें 37-3800 में कॉस्ट कर रही होती है, वहां पे ईरान के अंदर आपको 6 सेंट्स के अंदर है। ठीक है, और 6 सेंट्स के अंदर आप सोच लें कि आप उनको कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी compete ही नहीं कर सकते। मेक सेंस सर। और इसमें कुछ मतलब व्हेन आपने जब इनके साथ काम किया है SIFC के, तो उसके बाद कुछ फर्क पड़ा है? क्योंकि ये तो मतलब चलता ही रहेगा ना, मतलब बी सो प्रॉफिटेबल फॉर द मिडिल मैन कि अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नहीं हुई तो ये तो फिर मतलब बढ़ता ही रहेगा, और काफी इंडस्ट्रीज को नहीं, हमने देखा है कि इसमें काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी वोलेटाइल ना हमारी। इसमें अगर आप हम्म। देखेंगे तो ये इसको केयर से यूज करना है। ग्लास जो है हमेशा आपने वो देखा हुआ है, वो है। तो आप SIFC ने भी थोड़े से अपने कंट्रोल्स को टाइट किया है, तो अब काफी हद तक जो है वो कंट्रोल्ड है। बट आपको मैंने पहले बताया कि हम, क्योंकि हम कोई रेगुलेटर नहीं है, हम तो अपना कंसर्न नहीं उनको बता सकते हैं। वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हम लोग सब डिपार्टमेंट्स को टच किया है। तो उनकी तरफ से भी हमें अश्योरिटी दी गई है कि जी इंशाल्लाह ये इसको कवर अप करेंगे। लेट्स सी कि उनकी तरफ से क्या आता है, क्योंकि आपके सामने ही है, ऑयल की कंडीशन भी आपके सामने ही है। वहां से ऑयल भी आ रहा है, बाकी बाकी प्रोडक्ट भी जिस तरह मूव कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने फील किया है कि ये थोड़ी हद तक कंट्रोल में आया है। सॉरी सर, जस्ट टू फॉलो अप ऑन दिस, वो कोई जब ये जैसे चाइना में काफी कंस्ट्रक्शन का डूम आया था पिछले 2-3 सालों में, तो चाइना से उस वक्त डंपिंग हुई थी? मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करूँ, क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट भी जरा सा भारी होता है, तो वो शिपिंग और की भी कॉस्ट होती है, दैट माइट मेक अप बिट फॉर द एनर्जी डिफरेंशियल। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पिछले 2-3 साल में चाइनीज ग्लास यहाँ पे डंप हो रहा था, जब ये चाइना में इतना सारा जो कंस्ट्रक्शन का स्लो डाउन चल रहा था। नहीं, एक्चुअली चाइना के साथ चाहे हमारी मशीनरी के अंदर तो FTA है, लेकिन ग्लास इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने इसके ऊपर RD इम्पोज की हुई है।
और आरडीपी जो लगाई हुई है वो वेट पर्सपेक्टिव में चल रही होती है। तो बाहर से जो ग्लास है वो अगर इंपोर्ट करेंगे तो वो इससे कम से कम कॉस्टली होगा। तो हम लोग प्राइसेस जो अपनी ग्लास की प्राइसेस लोकल मार्केट में रख रहे होते हैं वो उसमें डेफिनेटली हम लोग देख रहे होते हैं कि किसी को थ्रो अवे प्राइसेस का वो मौका ना मिले कि पाकिस्तान में आके वो मार्केट जो ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट है उसके अंदर आके हमें और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट पे आए। तो एज सच किसी ने डंप नहीं किया। अच्छा सर, एक और आगे के मार्जिन्स पे क्वेश्चन था कि वो तो मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि अभी आप ऑब्वियसली इन्वेंट्री ऑफलोड कर रहे होंगे और ऑब्वियसली मार्केट ऐसी है कि जो आपका डीलर वगैरह होगा वो भी टाइम मांगेगा वगैरह। लेकिन माशाल्लाह आप लोग ने पिछले साल डिस्पाइट द डिमांड डाउनटर्न आप लोग ने अपने मार्जिन्स इंक्रीज किए हुए थे। तो क्योंकि ये इकोनॉमिक स्लम अभी लग रहा है कि साल डेढ़ साल तो चलेगा, तो मार्जिन्स हमें मेंटेन होते हुए लग रहे हैं या जरा से जो आपने फॉरवर्ड सेल किया हुआ है वो मार्जिन्स में हमें जरा सी डिप्लीशन दिख रही है? सर एक्चुअली ये टोटल डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल एज वेल एज द इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है। अगर तो ये बहुत ज्यादा डिटोरिएट कर गई तो हर कंपनी इवन के तारिक ग्लास है और बाकी कंपनीज के लिए भी उस बर्डन को पास ऑन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कंज्यूमर को। और अगर किसी न किसी वे के अंदर जिस तरह मैक्रो लेवल पे ऊपर वो कहते हैं कि इंडिकेटर पॉजिटिव है और उसका ड्रिल डाउन होके वो माइक्रो लेवल पे भी मूव वही होती है, तो फिर शायद आप ये कह सकते हैं कि वो पास ऑन पॉसिबल होगा कंपनीज के लिए भी ना। अभी तो ये आप समझे कि ये एक डेढ़ साल जो है ये तमाम इंडस्ट्रीज के लिए ये चैलेंजिंग है। बेहतरीन। एक आखिरी सवाल सर कि आई अंडरस्टैंड कि डिविडेंड का तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, इट मेक सेंस कि 10-11% होती तो वुड बीन डिफरेंट थिंग। 22% पे तो कंपनी वो डेट लेके तो डिविडेंड समझ आती है, नो क्वेश्चंस दैट। लेकिन लेट्स से ये अब हमारे को अगले डिविडेंड के लिए अगले साल ये जून में ही वेट करना पड़ेगा, या पहले अगर बीच में कैश जमा होना शुरू हो गया तो मिड ईयर या उससे पहले भी डिविडेंड की कोई होप हो सकती है, फिर अभी अगले साल पे ही डिविडेंड जाएगा? बीइंग द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इसके ऊपर तो आपकी कंपनी का बोर्ड ही कोई बेहतर आपको डिसीजन देगा डेफिनेटली। अगर उन्होंने पहले आप लोगों को कभी लेट डाउन नहीं किया और कभी कंपनी ने ये नहीं किया कि अपने कैश रिजर्व्स को जस्ट बिल्डअप करते रहे, तो उन्होंने इवन के अगर कैश नहीं भी होता था तो किसी ना किसी हद तक मैनेज करके तो डिविडेंड दिया है। और इस साल अगर ना देने की वजह है तो यही कि वो मैनेजमेंट जो थी वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर रही थी कि आने वाला टाइम पीरियड जो है वो टफ टाइम आ रहा है आगे उसको। और दूसरे नंबर पे उन्होंने आपके बिहाफ के ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी। तो सिर्फ इस वजह से है। लेट्स सी अगर इसके हमारी फिगर्स तो पॉजिटिव आती हैं तो डेफिनेटली मैंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो मैनेजमेंट है वो आप लोगों के लिए डेफिनेटली थिंक अबाउट करेगी इंशाल्लाह। बेस्ट सर। और सर पहला आप लोगों का एक्विजिशन था तो आई एम श्योर उसमें टीथिंग इश्यूज वगैरह आएंगे। आई डिडंट अटेंड वो बलूचिस्तान ग्लास का जो कह रहे थे, तो उसमें कोई लर्निंग्स वो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं उस पे, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट। आप लोग ने ऐसा नहीं किया था हाउ दैट एक्सपीरियंस इज गोइंग, बट दैट्स इट फ्रॉम मी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। एक्चुअली बलूचिस्तान ग्लास के अंदर तो वो एक सेपरेट कंपनी है, तो कल उसकी ब्रीफिंग के अंदर हम लोगों ने सारा एक्सप्लेन कर दिया था कि उसमें तारिक ग्लास जो है उसके लिए एक नई मार्केट ओपन हुई थी फार्मा की। तो वो हम लोग भी फर्स्ट टाइम है तो इसलिए थोड़ा बहुत टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं अदर देन द गैस इश्यूज। तो वो इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह's हेल्प हम लोग समझते हैं कि हम उसको कोप अप कर लेंगे इंशाल्लाह। एहसन सुरानी साहब आप हैंड जी रेज कर रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहले तो ये जो आपने फार्मा कैटेगरी में जो एंट्री ली है दैट्स फ्रॉम तारिक ग्लास राइट? बलूचिस्तान ग्लास का तो सेपरेट है। जी जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान वाया बलूचिस्तान ग्लास ही तारिक ग्लास में एंट्री ली है ना। अच्छा अच्छा, आपने स्टैंड अलोन बेसिस पे, आप अभी फार्मा में नहीं है राइट? जी जी परफेक्ट। और आपकी प्रेजेंटेशन में था कि आई थिंक आपने एक और नई कैटेगरी में एंट्री ली है राइट? ये जी वो फार्मा ही है ना सर। नहीं नहीं, ग्लास लिड मैन्युफैक्चरिंग राइट, वो कुकवेयर की जो है। नहीं तो एक्चुअली हम लोग ये चीजें तो पहले ही कर रहे थे ग्लास लिड, लेकिन जितना भी उसमें हमारा आ रहा था इशू अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल डेवलपमेंट हमारी कंटिन्यूअसली थी। जिस तरह हम लोग आप देखते हैं जग्स के लिड्स हम लोग पहले बाहर से ले रहे होते थे तो वो चीजें आ गई, फिर बाउल्स हो गए, इस किस्म के जितने भी हमारे होते थे सॉसर हो गए, इनके लिड्स जो हैं वो भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुद बनाना शुरू हो गए हैं ना, ताकि हम जो बाहर से करते थे वो अपने ग्लास के लिड में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको।
ओके, चले माशाल्लाह। और कोई न्यू कैटेगरीज में आप काम कर रहे हैं? बिकॉज लास्ट ईयर मेरे एजीएम में आई थिंक आपके रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि आप 2-3 पायलट्स कर रहे हैं और आप थर्ड पार्टी से बनवा रहे हैं, फिर जैसे कोई रिस्पेक्टेबल डिमांड आती है जिसमें आपको लगता है कि यू कैन ब्रिंग दैट मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस एंड एंटर इनटू अ न्यू कैटेगरी, तो आप देख सकते हैं। तो बाकी कोई कैटेगरीज में है आपका प्लान, या आप पायलट भी कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी से बना के, या उस पर कुछ गाइड कर सकते हैं? सर उसमें हम लोग बिल्कुल मैनेजमेंट जो है उसको देख रही है, और ड्यू टू द सर्टन मार्केट कंडीशंस इस वक्त कोई आपके सामने ही है, जिस भी इंडस्ट्री को आप लगाएंगे वो आपको इस वक्त वो प्रॉब्लम में नजर आएगी। तो जो भी कोई वायबल ऑप्शन नजर आती है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट उसको करेगी। अप टू द एक्सटेंट ऑफ द तारिक ग्लास अगर देखेंगे तो तारिक ग्लास जो है अपनी कॉस्ट कटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कर रही है, उन्होंने इसके अंदर आपको बताया भी है कि हम लोग 3.5 मेगावाट का जो सोलर है प्रोजेक्ट वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑपरेशनल हो चुका है। तो उससे हमें किसी ना किसी हद तक हमारी कॉस्ट कटिंग में और हमारी जो यूटिलिटीज की कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही थी उसमें एक रिलीफ मिला है हमें ना। थैंक यू। ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का आप बता सकते हैं, तो जो मार्केट है टेबल वेयर की एंड फ्लोट की, कि कितने ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वो टैक्स पेइंग एंड फॉर्मल ऑफिशियल है, और कितना ये जो ग्रे मार्केट या उसको कहते हैं जो भी, फॉर टेबल वेयर एंड फ्लोट बोथ? देखिए आप टू द एक्सटेंट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहते हैं तो 2-3 ही कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं और जिनका डाटा कोई अवेलेबल होता है आपको। उसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर आप जाते हैं तो प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि उसकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं और वो आप उसको कह सकते हैं कि अगर वो कुछ करें, लेकिन हम हमारे पास क्योंकि हम कोई अथेंटिक हमारे पास कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि वो सेल टैक्स में या टैक्स के वो जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक काम कर रहे होते हैं। जैसे इफ यू कैन टेल अस, जैसे जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर जनरली कितना होगा फॉर बोथ द कैटेगरीज, सो जस्ट वी कैन गेट एन आइडिया। देखिए मेजर मार्केट शेयर उन्हीं के पास है इस वक्त, जो अनलिस्टेड है, राइट? जो और लिस्टेड है, ओके, जो लिस्टेड है उनके पास है, और जो अनलिस्टेड है उनके पास थोड़ा है मार्केट शेयर। ठीक है। एक्सपोर्ट्स में माशाल्लाह आपने टेबल वेयर में काफी अच्छी पेनिट्रेशन की है फॉर यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे वैसे ही बड़ा वो टेक्निकल ग्लास होता है, तो उस पर आप कुछ बता सकते हैं कि क्या आउटलुक है, और या आगे हम 2-3 साल में क्या देख सकते हैं आपके एक्सपोर्ट्स की साइड पे? देखिए एक्सपोर्ट में अभी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ये जो मिडिल ईस्ट का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी वजह से फ्रेट और इंश्योरेंस वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुकी हैं, और ये वही हैं ग्लोबल लेवल के इश्यूज अगर रिजॉल्व हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर तो एक पॉजिटिव ट्रेंड होगा, और क्योंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिल रहा होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट तो है नहीं जस्ट लाइक द फ्लोट ग्लास। लेकिन अगर वो नहीं होता तो हो सकता है कि फ्यूचर जो है वो और ज्यादा ब्लीक हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से फिर आपकी एनर्जी कॉस्ट, आपके ऑयल प्राइसेस जो हैं वो फर्दर जो हैं वो हाई लेवल पे चली जाएंगी। लेट्स सी, हम लोग उसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं और न्यू मार्केट जो है वो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। मेरा जस्ट फाइनल क्वेश्चन, टेबल वेयर में इंपोर्ट और डोमेस्टिक का क्या रेशियो है? बिकॉज वी सी व्हेन वी गो टू सुपरमार्केट्स तो बहुत ऐसा आता है कि आई थिंक टर्किश ग्लास या थाई ग्लास या पता नहीं और किस्म के और होते हैं, और आपके भी माशाल्लाह टेबल नासिक और अमरोक के होते हैं। सो व्हाट्स द ब्रेकअप बिटवीन द डोमेस्टिक मार्केट शेयर एंड द इंपोर्टेड मार्केट शेयर? देखिए एक सर्टन क्लास जो है आप उसको तो फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट यूज करें, और वो क्लास आपकी 5 से 10% की क्लास है और वो हमेशा ही रहती है, वो हर कंट्री के अंदर अवेलेबल होती है। तो इसके अंदर भी एक अगर आप देखें कि क्रिस्टल ग्लास है या कोई डिफरेंट बहुत हाई क्वालिटी का है, तभी वो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो हमारी उस क्लास को निकाल दें तो हम जो प्लांट पाकिस्तान में है वो एक्चुअली मैसेज को कवर अप करने के लिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा पोर्शन या कोई मेजर पोर्शन जो है ना वो इंपोर्ट नहीं हो रहा। मतलब जो इम्पोर्टेड है वो आप बड़े स्टोर्स पे ही आप देखेंगे, लेकिन अगर आप लोकल मार्केट्स को विजिट करेंगे तो वो वहां पे आप देखेंगे दी मैसेज जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड ग्लास ही वही यूज कंज्यूम कर रहे हैं। Good to hear that. Thank you and best of luck for the future. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा ये सवाल था कि यू शोड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द सेकंड क्वार्टर 2024 जिसमें आपके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहे।
आपने मेंशन भी किया अपनी रिपोर्ट में कॉस्ट एफिशिएंसी, अभी भी आपने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में मेंशन किया कि आपकी जो सोलर पावर है, क्या ये जो कॉस्ट एफिशिएंसी आपने मेंशन की है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 में बेसिकली सोलर की वजह से ही है या कोई और एफिशिएंसी मेजर भी आपने इस क्वार्टर में लिया था? देखिए, हम लोग कंटिन्यूअसली जो मैनेजमेंट है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही है कि कहाँ से अपनी कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, क्योंकि इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर अब आप सारी की सारी जो इन्फ्लेशन की कॉस्ट कंपनी की हिट कर रही है वो पास ऑन नहीं की जा रही। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कंटिन्यूअसली अपनी प्रोसेसेस के अंदर जहां पे भी उनको कोई गुंजाइश मिलती है तो उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। कंप्रेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे कुछ मशीनें आप हाइड्रोलिक करना चाहते हैं ताकि एनर्जी के अंदर बच सकें तो वो है। और ये जो आपका जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 2.5 मेगावाट का जो सोलर का है, ये तो अभी जून के अंदर जाके कंप्लीट हुआ है। इसका इम्पैक्ट इसका इम्पैक्ट आपको आगे नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने डिमांड आउटलुक की बात की थी ग्लास की कि इट्स लिटिल ब्लीक, तो कुछ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक आप बता सकते हैं कि क्या रह सकती है आगे की अगले साल की डिमांड? देखिए, एक्सपेक्टेड यही है कि जिस तरह ये प्रिवेल किया है यही होगा, अनलेस की कोई स्वेयर सिचुएशन आ जाए। क्योंकि जो टाइम पीरियड आपने गुजारा है, इस टाइम पीरियड में आपने मल्टीपल टाइम सुना होगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम वो बैड पैच गुजार गए हैं तो एक्सपेक्टेड है कि इससे तो नीचे इंशाल्लाह नहीं आएगा। अभी करंटली क्या चल रही है? करंटली आप समझे कि 20 to 25,000 पर मंथ है ना। ठीक है। और आपने बात की थी लकी टीजी वेंचर की, आपने ये भी बोला कि अभी आउटलुक में नहीं देख रहे कि पहले ही अपने प्लांट्स ऑपरेशनल हो जाएं उसके बाद। तो आप कितने टाइम में देख सकते हैं? ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी ये क्वेश्चन कि अभी तो आगे का नहीं पता, लेकिन कितने टाइम में आप देख सकते हैं कि ये एग्रीमेंट होगा आगे आप और लकी कोर का? सर देखें कि हम लोग भी आप ही की तरह दुआ गो हैं अल्लाह से कि हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस में कोई बेहतरी आ जाए। अनलेस कि उनमें कोई मेजर जो है वो चेंज आती है तो उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ओवरऑल जो है एलटीयू लेवल पे अगर आप देखें तो जितना भी लार्ज मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो या तो स्टेगनेंट हुई है या वो लिटिल बिट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। आप किसी साइड के ऊपर मेजर इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं देख रहे होंगे। तो वो सब कुछ यही है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अगर तो कोई ऐसी स्ट्रेटजीज SIFC ने बना ली हैं जो कि वो कह रहे हैं कि हमें जो मैक्रो लेवल पे इंडिकेटर आ रहे हैं कि वो पॉजिटिव साइड पे हैं, और कब वो इंडस्ट्री वाली साइड पे मूव होती हैं उस पर डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जी थैंक जी, एनी फर्दर क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी, मेरे पास छोटे से सवाल है कि जैसे कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे बड़ी कॉस्ट होती है फ्यूल एंड पावर की होती है। तो आई एम अज्यूमिंग कि सबसे ज़्यादा जो इसका कंपोनेंट होगा फ्यूल एंड पावर में वो इलेक्ट्रिसिटी ही होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अलावा भी क्या आपका होता है पावर में इंकॉर्पोरेटेड? सर। पावर में फर्नेस ऑयल है जी, LPG है, गैस है और डीजल है, तो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेशन। इसका ब्रेकअप बता सकते हैं कि कितना पोर्शन जो है वो 30% ये होता है या देखिए, इस तरह हमारा का ब्रेकअप? जो पावर सेक्टर है वो हमारा कम होता है। यूटिलिटीज में पावर कम है और इसमें जो मेजर पोर्शन आ रहा होता है वो गैस और फर्नेस ऑयल जो है इसका होता है। उसकी वजह ये है कि हमारी जितनी भी फर्नेसेस हैं वो हमारे भी और थ्रू आउट द वर्ल्ड भी वो डिजाइंड हैं इस वक्त गैस के ऊपर या फिर फर्नेस ऑयल के ऊपर। तो मेजर जो कंजम्पशन है वो इसको ग्लास को मेल्ट करने में कंज्यूम हो रही होती है। तो अगर आप उन दोनों को आप कंपैरिजन में करते हैं तो 80% रफली जो है वो आपकी गैस और फर्नेस ऑयल यूज हो रही होती है, और बाकी का जो पोर्शन होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी पे मूव कर रहा होता है। सही है, तो आप कह रहे हैं 80% फर्नेस ऑयल और गैस हो रही होती है और 20% तकरीबन आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो रही होती है। जी, अच्छा आप मेरा उसको वेरी कर सकते हैं 70 से 80% ये जो है ना कंपैरिजन चल रहा होता है। ओके ओके। अच्छा बस एक और सवाल मेरा ये था
कि आपको कितनी लगते हैं यूनिट्स टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ फ्लोर ग्लास? सॉरी, कितने आपको लगते हैं किलोवाट आवर्स टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ फ्लोर ग्लास? सर इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये हर चीज वेरी कर रही होती है। कभी देखें, हमारा जो फर्स्ट रिलायंस होता है वो अपनी पावर जनरेशन पे हो रहा होता है, जो कि सोलर पे भी आ रहा है, और उसके बाद हम लोग गैस पे भी उसकी पावर जनरेट कर रहे हैं, फिर डीजल पे भी पावर जनरेट कर रहे हैं। और फिर ये है कि आप क्या थिकनेस बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, और हर थिकनेस के ऊपर ये चीज डिफरेंट हो रही होती है। अच्छा, तो आप कोई बॉल पार्क नंबर भी दे सकते हैं? जी, अच्छा। क्योंकि आपने अगर आप 12,000 या 13,000 टन की आप जनरेशन करवा रहे हैं, तो आप पूरा महीना थ्रू आउट द मंथ एक ही चीज नहीं वहां पे जनरेट कर रहे होते। आप थिकनेसेस और वैरायटीज को आपने मार्केट के हिसाब से वो चेंज करते हुए आपने चलना होता है। तो आप कलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑफ द मंथ के ऊपर जब आपको इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी कंज्यूम हो रही होती है, तो वो वहां से बैकआउट करेंगे। अगर वो थिकनेस चेंज होती है, कोई भी एक फिगर, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि 10 किलोवाट लगते हैं, तो अगर अगले महीने में वो थिकनेस का मिक्स चेंज होता है, तो वो हो सकता है वो 12 पे चला जाए या 8 पे आ जाए। वो सब कुछ चेंज हो रहा होता है। ओके, ओके। अच्छा, बस लास्ट सवाल कि आपकी एफ अभी इलेक्ट्रिसिटी रेट्स क्या चल रहे हैं ग्रिड कॉस्ट? सर वो हमारे वही चल रहे हैं जो बाकी इंडस्ट्री के चल रहे हैं सर। वो रफली कोई 50 के करीब चल रहे हैं जी। जो पीरियड अंडर कंसिडरेशन है, तो उसके अंदर तो ये रफली 50 के नियर अबाउट आ रहा था। लेकिन हम लोग कुछ एग्जैक्टली कह नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 3 महीने के बाद भी वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और जो प्रीवियस है वो आके लग जाते हैं। तो आप यही कह सकते हैं कि जहां जो चीज यहाँ पे आपको रिपोर्ट हुई है, रफली उस वक्त तक तकरीबन 50-55 के नियर अबाउट चल रहा था। सही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी सर, फर्दर क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, साजिद साहब बताइए। मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि डिस्पाइट द इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड ग्रोस प्रॉफिट साजिद साहब जरा थोड़ा सा माइक करीब करके बात कीजिएगा। जी आवाज चलो, आवाज आ रही मेरी? नहीं आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर यस होगा सर। हेलो जी हेलो, जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आपकी आवाज आ गई है। जी। सर मेरा सवाल ये था कि 2024 में जैसे कि आपके इंक्रीजेस हुआ रेवेन्यूज में भी और प्रॉफिट्स में भी, लेकिन ये देखा कि फ्लक्चुएशन है काफी EBITDA में और कैश जनरेशन में ओवर द ईयर। तो व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू स्टेबलाइज एंड ऑप्टिमाइज दिस फाइनेंशियल मैटर्स गोइंग फॉरवर्ड? आपकी फिर आवाज चलेगी, कुछ समझ नहीं आया हमें। कैश सर मैं फ्लोज की चैट भी पे बात कर रहे हैं? सर मैं चैट पे मैसेज कर देता हूँ। जी आप प्लीज मैसेज कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं इमरान बात कर रहा हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो बिजनेस है तारिक ग्लास का, तो उसमें आपने लास्ट ईयर कितने टन ग्लासवेयर सेल किया और कितने टन फ्लोट ग्लास? अच्छा, इसकी टनेज हमारे फाइनेंशियल्स के अंदर गिवन है कि जी कितना ग्लास हमने पुल किया और पैक किया। तो उसको विद माइनर एडजस्टमेंट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक्स, वो आप देख सकते हैं उसके नियर अबाउट ही तकरीबन होगा, अगर उसको सेलिंग उसकी टर्म में निकालें। अब अगर हमारे फाइनेंशियल्स के लास्ट में क्या इसका नोट 183 टन जो है ना वो पैक किया है ना, तो हाँ जी। रफली नियरली जो है इसके नियर अबाउट ही हम लोगों ने जो है वो सेल आउट भी किया हुआ है। ये तो इसका ब्रेकअप क्या है ग्लासवेयर वर्सेस फ्लोट ग्लास का 183 टन का? 183,000 टन, ये कितने है ये? 183 टन तकरीबन एवरेज आउट 55-45 का रेशियो चल रहा है ना। ओके, सही।
तो इसमें बेसिकली आपका जो हिस्टोरिक अच्छा जो एक साल है उसमें कितनी आपकी सेल्स हुई है टनेज के लिहाज से, अगर आप देखें? देखें जी, हिस्टोरिकली अगर आप जाएंगे 21 22 के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर, तो हमारी दोनों फर्नेसेस चल रही थी, और दोनों बल्कि 4 फर्नेसेस उस वक्त चल रही थी। 2 टेबल वेयर की चल रही थी, 2 फ्लोट ग्लास की चल रही थी। तो सारा जो है वो हम लोग उसको मार्केट को दे रहे थे। तो 280,000 टन तक वो जो मेरा ख्याल में गई है तो वहां। हमारा भी इतना ही था, और गनी इन कंपैरिजन टू गनी जो है वो भी, उसकी भी दोनों फर्नेसेस चल रही थी। आज उसकी भी एक ही चल रही है और तारिक ग्लास की भी एक ही चल रही है। राइट। और आपने आज पहले बताया था कि फ्लोट की जो पर मंथ डिमांड है वो तकरीबन 22,000 टन है। 22 से 25,000 के नियर अबाउट है ना। ये टोटल मार्केट डिमांड आप बात कर रहे थे या अपनी तारिक ग्लास का बता रहे थे कि ये तारिक ग्लास की डिमांड है? ओवरऑल और टेबल वेयर की कितनी डिमांड है अगर हम इसी तरह से देखें टनेज के लिहाज से पर मंथ? टेबल वेयर की आप समझे कि 6 to 7,000 टन की नियर अबाउट है जी। 6 to 7,000, ओके, राइट। और लास्ट क्वेश्चन है कि जो आपने सोलर के ऊपर एक इनिशिएटिव लिया है 3.5 मेगावाट्स का, तो ये कितना परसेंट आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर रहा है? जैसे आपने बताया था कि आपकी रिक्वायरमेंट अराउंड 20% इलेक्ट्रिसिटी की है, तो इज इट सफिशिएंट या आपको उसमें मतलब ये कितना उसको मीट कर रहा है उस रिक्वायरमेंट को? आप समझें कि ये रफली उस जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 10% या 12% ये मैक्सिमम कर रहा होगा, या 15% मैक्स। उसकी वजह यह है कि आज आप देखेंगे कि ना कि इसका मैक्सिमम टेन्योर जो है वो एवरेज आउट कैलकुलेट होके वो मैक्सिमम 4 आवर्स का इसको ले रहे होते हैं। और सेकेंडली ये है कि ये जियोग्राफिकल जो एरिया है, उस एरिया के अंदर आप देखेंगे तो स्मोक जो है वो शुरू हो चुकी है ना, सितंबर ऑनवर्ड स्मोक शुरू हो चुकी होती है। तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं क्लैरिटी ऑफ द वेदर, तो वहां पे भी आ रहा होता है। तो आप समझे कि 15-1% तक इसका जो है इम्पैक्ट आ रहा होता है। क्योंकि सोलर को तो पूरे साल में एवरेज आउट करते हैं ना जी, गर्मियों में, सर्दियों में और फोग में। तो फिर उस हिसाब से करें। वैसे अगर आप देखें, अगर उसकी कैपेसिटी वाइज देखें तो मे भी 30-35% कैपेसिटी वाइज नहीं उसकी लेकिन वो 4 परसेंटेज। घंटे होते हैं ना सिर्फ मैक्सिमम जिसमें आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी फिर ये है कि जो वो कैलकुलेशन करते हैं वो क्लियर वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। तो हमारे तो ये 3-4 महीने स्मोक कह रहा हूं कि एक टाइम पे अगर मैक्सिमम ले, अगर 3.5 मेगावाट अगर मैक्स आ जाए किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो मे भी कि टोटल का हमारा 30% के करीब वो पूरा करेगा। राइट। और बलूचिस्तान ग्लास के अंदर जो आपका एक आपकी मैनुअल रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि आपने एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी है अराउंड 1 बिलियन रुपीस की, तो क्या इसका इम्पैक्ट भी आएगा गोइंग फॉरवर्ड आपके पे आउट्स के ऊपर? नहीं, एक्चुअली ये सिर्फ अभी तक अप्रूवल ली है और अभी पास ऑन नहीं किया, क्योंकि बलूचिस्तान ग्लास इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो उसको रन करने के लिए जो ऑपरेशनल उसके इश्यूज थे, जो बैंक्स वगैरह के साथ प्रॉब्लम्स थी उस वक्त, तो उसके पेश नज़र हम लोगों ने अप्रूवल ली थी मेंबर्स से कि अगर कोई बैंक्स वगैरह पैनल पे नहीं आते तो हो सकता है कि हमें कुछ सपोर्ट करना पड़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैनेजमेंट का इतना बैंकों का भी ट्रस्ट लेवल था कि हमें वो फैसिलिटीज मिल गई, इसलिए इसमें से हम लोगों ने कुछ भी पास ऑन नहीं किया। राइट। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपने कल बताया था बलूचिस्तान ग्लास से रिलेटेड कि बलूचिस्तान ग्लास की जो प्रोडक्शन थी या जो इनकी इन्वेंट्री थी वो बेसिकली तारिक ग्लास से थ्रू सेल की गई, तो वो कितनी क्वांटिटी है? सर वो आप समझें कि 5,000 टन है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर और आंसरिंग। क्योंकि और ये मैं अभी तक बता रहा हूँ, ये उस और फाइनेंशियल 1 मंथ की नहीं है, वो 26 डेज की, क्योंकि वो अगर आप समझे। अगर आप इस रिपोर्ट के अंदर जाके देखेंगे तो 24 का जो जून है, तो वहां तक हम लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा भी है वो रफली 1500 to 1600 टन जो थे वो हम लोगों ने मूव दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल फिगर। हाँ जी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। जी सर, एनी Yes. फर्दर क्वेश्चन? जी, अस्सलाम वालेकुम। Can you hear me? वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, ये ज़रा मुझे बता दें, जो बार्गेन परचेज गेन एक 915 मिलियन का पीएनएल में आया है, तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज 1.8 बिलियन की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके जितनी आपने पे किया उसका डिफरेंस का एक गेन लिया आप लोगों ने। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। 50% है ना जी होल्डिंग, शेयर होल्डिंग तारिक ग्लास की, 50% पार्टनरशिप है। तो ये उसमें 1 ये है ना, जी 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 बोलिए। उसमें ये है कि जो एग्रीमेंट हुआ था तारिक ग्लास का सेलर के साथ, उसके साथ एक प्राइस निगोशिएट हुई थी। तो उस प्राइस के ऊपर जब तारिक ग्लास ने ले लिया, बट अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में तो वो देखते हैं कि बुकिश उसकी नेटवर्थ उस कंपनी की कितनी है, जिसके अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और सब कुछ आ रहा है। तो जब उसकी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो उसका जब 50% निकालते हैं, that is much higher as compared to what Tariq Glass has negotiated with the seller. तो उन दोनों का जो गैप है वो यहाँ पे आपको बार्गेन परचेज जो है गेन वहां पे नजर आ रहा है। ठीक है सर, एक और चीज़ ये कि जो प्लांट के जो लाइफ होती है वो तकरीबन 7 to 8 years होती है, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट प्रीवियसली। तो इसके ऊपर ये केपेक्स, क्योंकि आई एम सीइंग अराउंड 1.2 बिलियन का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये वही प्लांट का जो फ्लोट नंबर 2 जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये वही उससे ही पर्टेनिंग है। जी जी, जो हमारे CWIP में आ रहा है आप उसकी बात कर रहे हैं? जी 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 जी, ये बिल्कुल उसी से है, उसी से रेलिवेंट है, क्योंकि आप उसको कैपिटलाइज उसी फॉर्म में कर सकते हैं जो कि डिफरेंट रेगुलेटर्स ने कहा हुआ है कि जब उसका आप COD कर देंगे तो तब आप उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो ये अराउंड इतनी अमाउंट होती है या इसके अंदर फर्दर एडिशन होगा जब ये COD पे जाएगा? देखिए जब COD पे जाएगा इसमें मेजर जो है मोर देन 90-95% काम हो चुका हुआ है, और थोड़ा बहुत जाके उस वक्त हो सकता है, लेकिन मेजर इसके ऊपर जितना भी था वो लग चुका है। और ये जो प्लांट होता है ये 100% नहीं, आप समझें कि ये सिर्फ फर्नेस को रीबिल्ड किया जाता है, उसकी ब्रिक्स को चेंज किया जाता है, उसका जो स्टील स्ट्रक्चर है वो वही चल रहा होता है जो आपने फर्स्ट टाइम में कर रहे होते हैं, अनलेस कि वो कोई मेजर मॉडिफिकेशन रिक्वायर कर रहा हो। बाकी ये जो ब्रिक्स वगैरह चेंज कर रही होती हैं, या आपके आगे जो मशीनरी के कुछ सर्टेन पार्ट्स जो आपने चेंज रिप्लेस करने होते हैं, ये वो हम लोग कर रहे होते हैं। सही। और सर लास्टली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इस प्लांट इंडस्ट्री के अंदर अगर प्लांट सॉरी ग्लास इंडस्ट्री में अगर प्लांट एक दफ़ा ऑन कर दें, तो जिस तरह लास्ट ब्रीफिंग में भी आप यस्टरडे भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक दफ़ा प्लांट ऑन हो जाए, इवन आपका माल मार्केट में बिक रहा है नहीं बिक रहा है, यू स्टिल हैव टू प्रोड्यूस इट बिकॉज एनर्जी लॉसेस इतनी ज़्यादा है कि 15-16 डेज लगते हैं इसके। तो इवन दो ट्रेड डेट्स और आपकी जो इन्वेंट्री वो पाइल अप हो रही है, लेकिन आपको फिर भी प्रोडक्शन करनी पड़ी है। देखिए उसमें जब आप एक दफा फर्नेस फायर कर देते हैं तो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन तो यही रहता है कि जो भी आप उससे मैक्सिमम जो है वो पुल लें, ताकि आपका पर टन जितना डिक्रीज होना चाहिए वो हो जाए। और अगर आप उसके पुल को भी रिड्यूस करते हैं तब भी आपकी कॉस्ट इंक्रीज करती है, और अगर आप उसको बंद करना की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर उसको एक तो बंद करना, वो आपको रिस्पेक्टिवली ग्रेजुअली आपने टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, फिर आप उसको क्लोज करेंगे, और जब आप फिर दोबारा स्टार्टअप करेंगे तो वही आपकी बात जो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि 1.5 से 2 महीने का टाइम पीरियड हमें फिर चाहिए होगा, और ये सारी कॉस्ट जो है ये संक कॉस्ट बन जाती है ना फिर। सही, ओके, थैंक यू। जी अगर वर्बल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हो तो हम चैट बॉक्स के क्वेश्चंस को आंसर करें। अच्छा सर, सर मेरा जी एक सवाल था वालेकुम बस छोटा सा। जी सर प्राइसेस के हवाले से सवाल था, आप मुझे बता सकते हैं कि दिसंबर से लेकर जुलाई तक जो फ्लोट और टेबल वेयर की प्राइसेस हैं वो किस तरह से मूव ऑन हुई? क्योंकि मैं प्राइस ट्रैक कर रहा था, मैंने नोटिस किया था अराउंड 20% तक का डिक्लाइन आ रहा था मार्केट प्राइसेस के अंदर जो मेरे पास प्राइसेस आ रही थी। तो उसमें आप मुझे थोड़ी वेरिफिकेशन दे सकते हैं किस तरह से प्राइसेस मूव ऑन हुए हैं फ्रॉम दिसंबर टिल नाउ? फ्रॉम दिसंबर टिल नो ये है कि मैंने वही आपसे बताया ना कि इन्फ्लेशन का एक सर्टन पोर्शन तो हम लोग पास कर सके हैं, और बाकी जो पोर्शन था वो कंपनी को रिटेन भी करना पड़ा है। अब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये है कि मार्केट की कंडीशन और उनके हालात को देखते हुए जहां पे कंपनी समझती है कि अब इसका एक सर्टन पोर्शन और पास ऑन कर सकते हैं तो वहां पे कर रहे होते हैं। और नॉर्मली ये होता है कि जब आपका एक पीक सीजन चल रहा होता है तो उसी वो दैट इज द राइट टाइम टू एक्चुअली अपनी प्राइसेस को आप थोड़ा सा रैशनलाइज कर रहे होते हैं।
ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस आपकी इंक्लिनेशन की तरफ जाएंगी या फिर स्टेबल ही रहेंगी फिलहाल? देखिए, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री, जो भी उसकी बेसिस के ऊपर है। अगर वो ठीक हो जाते हैं पैरामीटर्स, तो डेफिनेटली हमारी कोशिश होगी कि इसको जो है पास ऑन करें, और अगर वो चीजें सही नहीं होती तो फिर आपने किसी ना किसी हद तक तो सरवाइव तो करना है ना मार्केट के अंदर। ओके सर। सर, मेरा लास्ट सवाल था रिगार्डिंग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। आपने लास्ट ईयर अपनी ब्रीफिंग में मेंशन किया था कि एक और नया प्लेयर आ रहा है टेबल वेयर के अंदर, जो कि डेली ग्लासवेयर के नाम से आ रहा है। और सेकेंडली आपके जो कंपेटिटर हैं गनी ग्लास, उन्होंने भी टेबल वेयर के अपने प्रोडक्ट्स लाना स्टार्ट कर दिए, जो कि मार्केट में नजर भी आ रहे हैं। तो उनके हवाले से आप अपना बता सकते हैं कि आपके मार्केट शेयर पे कितना इम्पैक्ट आया उनके प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद? देखिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि डेली ग्लास ने पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन बेशक लास्ट ईयर शुरू की है, बट एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर पहले भी डेली ग्लास का प्रोडक्ट आ रहा था, और पहले वो चाइना से बना के यहाँ पे वाया इंपोर्टर आ रहा था, और उसके बाद जो है अब उन्होंने आके लोकल लेवल के ऊपर कर दिया है, इसकी प्रोडक्शन को शुरू किया है। जब भी कोई नया प्लेयर आता है, डेफिनेटली अगर वो अपनी सेल को कंटिन्यू रख रहा है, तो डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन्हीं का शेयर जा रहा होता है ना कहीं से। तो वो आप समझें कि अगर बीजीएल को फार्मा में मूव किया है, तो बीजीएल लास्ट ईयर के अंदर किसी ना किसी हद तक मार्केट के अंदर था। इसी तरह जो बाकी कंपेटिटर हैं, गंज ग्लास है या दूसरे हैं, वो भी किसी ना किसी हद तक मार्केट में थे। तो हर एक का कुछ ना कुछ शेयर तो मूव होता है, लेकिन आप ये कहें कि दिल्ली बिल्कुल पाकिस्तानी मार्केट के लिए नया है, तो वो चीज नहीं है। दिल्ली ऑलरेडी भी मार्केट में प्रोवेल कर रहा था, यहाँ पे वाया इंपोर्टर्स कर रहा था। ओके सर, लेकिन वो प्राइस कंपेटिटिवनेस तो उनकी थोड़ी बढ़ गई होगी, क्योंकि लोकली अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्राइसेस देखिए, उन्होंने थोड़ा चाइना के अंदर डिस्काउंट। जो कॉस्ट थी, डेफिनेटली चाइना के अंदर जो कॉस्ट थी वो समथिंग डिफरेंट थी। आज जब पाकिस्तान में आके हमारी कॉस्ट के ऊपर ही उसे काम करना पड़ रहा है, तो यहाँ के पैरामीटर्स जो हैं वो दोनों के लिए एक जैसा है, एक जैसा ग्राउंड है, तो यहाँ पे दोनों चल रहे हैं ना इस वक्त। और वैसे भी एक हमारी मार्केट का है कि जब भी कोई नया प्लेयर आता है तो उसको एक सर्टेन कुशन तो देते हैं ना एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केट को भी देख रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट रेंज को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और डेफिनेटली जो भी कंपेटिटर को काउंटर करने के लिए जो भी बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस है वो तारिक ग्लास को अडॉप्ट कर रही है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। बस सर एक छोटा सा सवाल है, ये पुल एंड पैक जो आपकी प्रोडक्शन होती है, ये सब आप बता सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है? The pull is the glass which is obtained from the furnace, क्योंकि furnace में is a melter, वहां पे सारा रॉ मटेरियल मेल्ट होता है। तो जब उस ग्लास को फर्नेस में से निकाला जाता है, उसको हम कहते हैं कि ग्लास पुल ऑन द मोल्डिंग मशीन्स और ऑन द टिन बाथ। तो जब वो पैक हो जाता है, क्योंकि उसमें से सर्टन क्वांटिटीज जो है ना वो रिजेक्ट भी होती हैं, तो वो ग्लास पैक कहलाता है। तो दिस इज, और जो उसका डिफरेंस है दोनों का, पुल और पैक का, वो कलेंट बन जाता है, वो रिसाइकल हो जाता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट पुल एंड पैक ऑफ ग्लास। क्या तो रिसाइकिल होता है, वेस्ट नहीं होता होगा जैसे नो वेस्टेज भी नो होती है? नो नो, ग्लास रिसाइकल होता है। चले, ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, चैट बॉक्स के ऊपर हम भी अगर क्वेश्चन लें, अगर आप उसे नहीं यहाँ से आ जाएगा, आप इसको फिर जरा विल यू शेयर प्रेजेंटेशन ऑन हाँ जी, स्क्रीन? हम लोगों ने वो हाँ जी, ये इमरान साहब हैं, ये कह रहे थे प्रेजेंटेशन ऑलरेडी स्क्रीन पे चल रही है। उमर हयात साहब का क्वेश्चन है जी कि व्हाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज डिक्रीजिंग एवरी ईयर। वो अगर आप इसको भी देखेंगे तो आपको वहां से मेजर वो वही एलिमेंट नजर आ रहा होगा कि कैश जो स्टकअप हो रहा है वो ट्रेड डेट्स के अंदर है और स्टॉक इन ट्रेड के अंदर है, वहां पे वो मूव है, क्योंकि दोनों की वैल्यू अपवर्ड गई है। तो वहां उसी इंपैक्ट की वजह से जो कैश जनरेशन है वो आपको कैश फ्लो के अंदर जो है वो नजर आ रहा है कि लास्ट ईयर से कम है। बट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर पॉजिटिविटी के अंदर है। बट इस फिगर्स को कैश फ्लो में जब नरेट कर रहे होते हैं तो वहां पे इस इंक्रीज का इंपैक्ट वहां पे नेगेटिव हो जाता है। अच्छा जी, गेन्स का क्वेश्चन है जी कि सम क्लैरिटी ऑन डिविडेंड पॉलिसी। It's understandable because of lesser cash flow and new investments, cash dividend was missed, but why no bonus dividend
मेरे ख्याल में डिविडेंड के ऊपर तो काफी दफा 2-3 दफा क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, फ्यूचर पॉलिसी भी डिस्कस कर ली। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था। सर आप जरा प्लीज वेट कर ले, अभी हम जरा चैट बॉक्स से क्वेश्चन कर ले, फिर एंड पे आपसे क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज मोहम्मद अहमद साहब फ्रॉम आरिफ हबीब। इनका क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर कंज्यूम्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2024? तो एक्चुअली उसमें ये है कि हम यूनिट्स भी बिल्कुल आइडिया है, वही आपको बताया था कि थिकनेस और ग्लास कंपोनेंट की वजह से वो चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कैपेसिटी इस वक्त हमारी जो ऑपरेशनल है, वैसे तो कैपेसिटी तारिक ग्लास की जो है वो मोर देन 10 मेगावाट है, लेकिन 7 मेगावाट इस वक्त जो है ऑपरेशनल है, जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि ये वेरी करती रहती है जी 7 to 11 मेगावाट, क्योंकि समटाइम्स आपको कोई रीस्टार्ट जब देना होता है किसी भी मेजर कंपोनेंट ऑफ मशीनरी को, तो दैट अट्रैक्ट्स हायर वोल्टेजेस, तो वहां पे कंजम्पशन बढ़ जाती है, और अगर फिर जब वो कंटिन्यूटी में आया था तो डेफिनेटली उसके एम्पेयर्स वगैरह नीचे डाउन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इज सैमसंग इज व्हाट इज योर करंट मार्केट शेयर इन लोकल मार्केट फॉर फ्लोट ग्लास? वो ऑलरेडी डिस्कस किया कि जी क्या मार्केट है, उसमें 2 ही प्लेयर्स हैं, ऑलमोस्ट 50-50%। हाँ जी, अनवर ख्वाजा साहब है जी, डिविडेंड वाज केप्ट लास्ट ईयर, कैन वी एक्सपेक्ट इंटरिम डिविडेंड? सर इट इज लास्ट ईयर तो डिविडेंड दिया था। हाँ जी, हाँ जी, और दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर जो है, वो भी आपको सारी रीजन तो एक्सप्लेन कर दी है हम लोगों ने। So next is Asad Haider Saab. As you mentioned, the inflationary pressure has not been fully passed on to the customer, but we have seen GP margin increase to 26% from 20% in financial year 2023. What factor mainly contribute the increase of GP margin in this year? वही है कि मैनेजमेंट जो है अपनी कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट कटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी ज़्यादा है, एफिशिएंसीज के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं। जिस तरह ये जो आपका जो है सोलर है, वो 1 मेगावाट हम लोगों ने लास्ट ईयर से भी पहले हम लोगों ने कर लिया था, लास्ट ईयर के स्टार्ट के ऊपर कर दिया था। बाकी कुछ मशीनरी के अंदर जो लेटेस्ट वहाँ पे मोटर्स हैं वो इंस्टॉल करके हाइड्रोलिक बना के, तो उसकी कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, एफिशिएंसीज को अप टू द मैक्सिमम लेवल जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन के तक आप करके उसको बेहतर कर सकते हैं, या इसकी ग्लास की जो रेसिपी है उसको आप बेहतर कर सकते हैं, जो कि आप लोकल सब्स्टिट्यूट अगर आप कोई देख रहे हैं इंपोर्टेड आइटम्स का, तो वो ये सारी चीजें करने के बाद आपको यहाँ पे जो इसके अंदर इंक्रीज नजर आ रही है, वो सारी आपकी मैनेजमेंट की उस सारे हार्ड वर्क का नतीजा है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब्दुल रऊफ साहब ने फिर कहा है कि नो डिविडेंड, यस नो डिविडेंड दिस ईयर। अच्छा जी, और फिर सर साजिद साहब है कि डिस्पाइट द इंक्रीज इन रेवेन्यू and gross profit for financial year 2024, there has been a fluctuation in the EBITDA and cash generation figures over the years. What steps are being taken to stabilize and optimize these financial metrics going forward? कैश जनरेशन वाली बात, वही कैश जनरेशन है, वो आपकी मार्केट बेहतर, हमारी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, कभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसीज की वजह से तो सब कुछ चल पड़ता है। आपने पिछले 2-3 साल पहले देखा होगा कि एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च हुई इंडस्ट्री के लिए, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, तो आपकी 40-50 इंडस्ट्रीज बूम कर गई। नई गवर्नमेंट आई, नया एनवायरनमेंट जनरेट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में खराब हुई, तो वही चीजें डिप वाली साइड पे मूव कर गई। तो जी साजिद साहब कह रहे हैं मेरे क्वेश्चंस को आंसर करें। सर होपफुली साजिद साहब आपके क्वेश्चन आंसर हो गया है। साजिद साहब इज अगेन, और इन्होंने काफी एक डिटेल में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि जी कह रहे हैं कि गिवन दैट 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पासेस थ्रू की मैरीटाइम रूट्स with potential risks such as the Iran-Israel conflict, possibility affecting the Strait of Hormuz, a critical passage for international trade, has Tariq Glass developed a contingency strategy to ensure continuity in the supply of raw materials and the distribution of products in the event of a blockade or disruption? If so, what alternative logistics or supply chain or solutions are being considered? देखिए मैनेजमेंट इसको भी देख रही है, क्योंकि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड एक सिनेरियो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा मूव कर रहे हैं ईस्टर्न साइड के ऊपर, ताकि ये जो आज़रबाईजान
तुर्कमानिस्तान या ये साइड जो है ये वेन्यू ओपन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, तो मैनेजमेंट जो है वो इसको रियली कंसीडर कर रही है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इवेंट या इंसिडेंट होता है तो उसके अंदर एक हमारे पास भी बैक एंड पे प्लान होना। तो इसमें मैं ऐड कर दूं कि अगर आपने रॉ मटेरियल्स की बात की ना, तो रॉ मटेरियल्स आर लोकली अवेलेबल। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इंपोर्ट करते हैं, इट्स मेयरली और कलर्स हैं या कुछ छोटे से केमिकल हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी लोकली वो भी अवेलेबल हो जाते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर एक्सपोर्ट में, जो मेयरली 9 to 10% है हमारी टोटल सेल्स का। तो उसमें जैसे अभी काशिफ साहब ने बताया कि देखिए उसमें हम डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज को ईस्टर्न में, फार ईस्ट में, श्रीलंका, नेपाल वगैरह और इस तरफ इन कंट्रीज को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो दैट कि जी कि हमारी एक्सपोर्ट्स उधर राउट हो जाए। अच्छा जी, फिर उमर हयात साहब ने एक और क्वेश्चन किया जी कि काइंडली टेल मी अबाउट द शेयर ऑफ तारिक एंड गनी इन फ्लोट ग्लास। तो ऑलरेडी बता दिया कि ऑलमोस्ट 50-50% है। अच्छा जी, साजिद साहब ने एक और क्वेश्चन किया जी, considering the potential increase in fuel prices due to geopolitical tensions such as Iran conflict, which could drastically affect global oil supply, has Tariq Glass accorded for these kinds of fuel price surges in its operational cost planning? What strategies are being implemented to mitigate the impact of rising energy costs on production and profitability? देखिए, हम लोग एक यूजीडीसी कंपनी है, उसके साथ हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वो इन कंपैरिजन टू द एसएनजीपीएल हमें थोड़ा सा लोअर कॉस्ट के ऊपर हमें वो गैस अवेलेबल है। बाकी सब्जेक्ट टू आप देखें कि जो भी प्राइस होगी वो फिर सिर्फ तारिक ग्लास के लिए नहीं होगी, बाकी सारी इंडस्ट्री के लिए और तारिक ग्लास के कंपेटिटर सबके लिए एक ही प्राइस होगी। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भी और सबके लिए बेहतरी करे, ये हमारे वेल्स एक्सप्लोर हो जाएं। हाँ जी, या ईरान के साथ या ताइपाई जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े से अपने ऑपरेशनल हो जाएं, तो ये काफी हद तक जो है ना इन चीजों को कवर किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज तलहा खान, व्हाट इज द करंट 5 mm फ्लोट ग्लास प्राइस रिटेल और डीटीपी, विच एवर लास्ट आई नो इट वाज 235,000 पर टन। रफली ये नियर अबाउट 250 के नियर अबाउट चल रही होगी जी। हाँ जी। गेम्स ने एक और क्वेश्चन किया जी कि इट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑफ लेसर कैश फ्लो एंड न्यू इन्वेस्टमेंट्स कैश डिविडेंड वाज मिस्ड, बट व्हाई नो बोनस डिविडेंड? जो आपने खुद ही अपनी रीजन दे दी है जी, इसी वजह से नहीं था। हाँ जी, बोनस पे भी देखा जा सकता है, लेकिन उसमें टैक्सेशन का इम्पैक्ट इस वक्त बहुत ज्यादा है। वो आप बात करें गवर्नमेंट से कि जी कि वो उसको थोड़ा सा रिलीफ दे। मेरे ख्याल में बोनस के ऊपर जब भी होगा तो आपको खुद से वो टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। पहले आप टैक्स डिपॉजिट करेंगे, फिर आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे, तो इसको थोड़ा सा। और उसमें भी वो आ रहा है कि जी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर करें या उसके ऊपर करें, तो अभी वहां पे डिबेट चल रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट अवैध साहब है, हाउ मच कॉस्ट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द कंपनी, प्लीज क्वांटिफाई। अभी डिफरेंट पैचेस के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। जब भी कंपनी को फील हो रहा होता है कि आप इसको पास ऑन कर सकते हैं तो आप उसको पास ऑन कर रहे होते हैं। आप देखिए कि जितनी भी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है वो अगर आप वन गो के अंदर मार्केट को पास ऑन कर देंगे, ये कोई नेसेसिटी प्रोडक्ट नहीं है जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेसेसिटीज में ये चीज नहीं आती जिसके बिना जिंदगी गुजारा नहीं किया जा सकता। तो आपको मार्केट में एक सडनली थ्रो अवे प्राइस नहीं देनी चाहिए। आप इसको सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप कर रहे होते हैं और कंपनी की भी कोशिश होती है। अब डिफरेंट मंथ्स के अंदर, डिफरेंट पैचेस के अंदर कंपनी ने अपनी जो कॉस्ट कटिंग की है, तो जो बैक एंड से जो इंक्रीज हुआ है वो किसी ना किसी हद तक कंपनी ने मैनेज बोथ वे किया है। कुछ उसका पोर्शन हम लोगों ने पास ऑन किया और कुछ हमने कॉस्ट वाली साइड के ऊपर अपनी एफिशिएंसीज को इंक्रीज करके वहां पे उसको रिड्यूस करने का रिड्यूस किया है। तो आप कह सकते हैं कि किसी हद तक कंपनी जो है वो कामयाब रही है कि 78 to 80% जो है वो पास ऑन कर दिया है। नेक्स्ट दानिश गनी साहब ने दुआएं दी हैं सर, थैंक यू वेरी मच आपका। आप बड़े रेगुलर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमेशा आपकी सपोर्ट रही है सर, थैंक यू वेरी मच दानिश साहब। अच्छा जी, तलहा साहब ने क्वेश्चन किया थी, इफ पॉसिबल काइंडली कंडक्ट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन क्वार्टरली। सर इसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी जो क्वार्टरली जब रिपोर्ट आती है तो हमारी जो डायरेक्टर्स रिव्यू रिपोर्ट है उसको गौर से अगर आप पढ़ा करें ना, तो मेरा ख्याल में उसमें बहुत सारे
क्वेश्चंस के जो है ना आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज जरा जो क्वार्टरली डायरेक्टर्स रिव्यू रिपोर्ट्स है ना वो आप जरूर देखा करें। और बाकी इंशाल्लाह ताला आपका सजेशन सर हमने नोट कर लिया है, इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि जी इसको इसकी जो इसको बढ़ाएं, इसकी फ्रीक्वेंसी को, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस की। अच्छा नेक्स्ट अवैध साहब हैं सर, रिसेंट गैस प्राइस इंक्रीज है, the cost of your consumption as you are using diesel and LPG, so how much margins we can expect to increase in coming quarters? सर अगर ये इंक्रीज होंगी तो फिर मार्जिन तो हम लोग अपनी खुशी से बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। जब गैस के प्रेशर जो हैं बैकएंड से वो डाउनवर्ड आते हैं तो उस वक्त मजबूरन हमें करना पड़ता है। और सर्दियों के अंदर नॉर्मली आपको घरों के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है और इंडस्ट्री के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो उस वजह से अनलेस कि गवर्नमेंट लेवल पे इसको सेट नहीं किया जाएगा तो हम कुछ नहीं कह सकते सर इसका। तो ये मजबूरी है, अगर आपने इसको 24 आवर्स आपने लाइव रखना है और चलाना है तो फिर आपने वो दूसरे वाला रिस्क बहुत बड़ा है, तो हमें एलपीजी और इसके ऊपर मूव करना पड़ता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सैमसंग, इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि पहले ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आना चाहिए था, लेकिन ये अभी इन्होंने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया कि देखिए इन लाइन विद द आईएमएफ गाइडलाइंस गैस सप्लाई विल बी curtailed to captive power plants, how will this impact your company? ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है इन हालात में। इसमें यही चीज है कि कंपनी इसको पहले भी देख रही है कि गैस कनेक्शन, इसीलिए हम लोग यूजीडीसी एक सेकंड सोर्स था जो एसएनजीपीएल के अलावा एक प्रोवाइडर है। जिस तरह डिफरेंट जो है ऑयल की भी एक दो कंपनीज हैं वो भी आई हुई हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट यूजीडीसी से हो चुका है, तो उससे हम लोग कैप्टिव का कनेक्शन वहां से मूव करने की प्लान आउट कर रहे हैं। और सेकंड सोर्स जो है हमारे पास फर्नेस ऑयल के जेनसेट्स हम लोगों ने रेडी रखे हुए हैं, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और थर्डली इन एनी केस हम मूव करना चाहेंगे उसके ऊपर डीजल के ऊपर, क्योंकि वापडा का जो सोर्स है वो ज्यादा रिलायबल नहीं है। जैसे ही वापडा कोई उसका स्केड्यूल तो है कोई नहीं, जब भी अप एंड डाउन आता है तो उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन लॉस है वो काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम अदर अल्टरनेटिव्स जो हैं इन पाइपलाइन है और वो रेडी कंडीशन में भी हमारे पास है। इंशाल्लाह हम लोगों ने सोचा हुआ है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि अगर ये ना हो, ताकि अगर ये भी कर देंगे तो हो सकता है हम फिर एक्सपोर्ट मार्केट जो कि गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है कि हमारे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें, वो पॉसिबल ही ना रहे। सर जी नेक्स्ट इमरान साहब ने थैंक यू और बेस्ट विशेस कही हैं सर, थैंक यू वेरी मच। साजिद साहब ने भी थैंक यू बेस्ट विशेस सर, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट फिर तलहा खान साहब इज वेरी इलैबोरेटिव, थैंक यू सर, आपकी ग्रीटिंग्स और दुआओं का शुक्रिया। मिनाहिल अली, व्हाट इज द प्राइसिंग ऑफ ओजीडीसी? वो इन कंपैरिजन टू द एसएनजीपीएल थोड़ा बहुत स्लाइटली उसका फर्क है, लेकिन कम से कम ये है कि हमें वो गैस मिल रही है ना। दिस इज यूजीडीसी बेसिकली, यूजीडीसी है, मतलब इट्स $1 और मेरे ख्याल में $0.50 से $1 के दरमियान में कर रहा है। हाँ जी वो होता है रेट जी उसका। एंड मिनाहिल अगेन इज एंड टोटल मिक्स इन गैस, वो भी जैसे काशिफ साहब ने बताया कि जी कि गैस और फर्नेस ऑयल इज अबाउट 80% और 20% इज पावर। तो दैट इज ऑल अबाउट द चैट बॉक्स। अगर किसी ने अभी फिर भी कोई वर्बल क्वेश्चन करना है तो प्लीज कर ले, अगर नहीं तो फिर हम अपना सेशन क्लोज कर लें। मेरा एक क्वेश्चन है जी प्लीज। ये आपकी जो अपना ये फ्यूल कॉस्ट है, ये टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट का कितना परसेंटेज है ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की? ये भी काशिफ साहब ने जैसे भी बताया था कि ये ऑलमोस्ट 40-45% पावर एंड फ्यूल हमारा टोटल कॉस्ट का जो, हाँ जी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का बेसिकली। ठीक है जी। और ये आपके जो रॉ मटेरियल हैं वो बाकी सारे लोकली सोर्स्ड हैं? जी 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 95%, 99%। ठीक है जी। और ये जिस तरह इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं फॉर डिमांड इंक्रीज? इसका क्या आपका, इससे आपको लगता है डिमांड इंक्रीज करेगी? देखें जी अभी तक तो थोड़ा सा मार्केट में स्लम्प इस वजह से भी था कि इजी मनी वाली साइड पे सारे मूव कर रहे थे। अब आप देखें कि अगर वो कंटिन्यूसली ये ग्रेजुअली जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14-15 पे लाने का, और इसको फर्दर जो है जो इसके ऊपर वो जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने किया है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे 25% डिविडेंड का रेट कर दिया है,
और अगर आपका जो बैंकों के अंदर आप डिपॉजिट करते हैं और वो 5 मिलियन से आपका प्लस हो जाता है तो फिर वो आपकी नॉर्मल इनकम काउंट होगी। तो डेफिनेटली कुछ 6-7% के लिए तो कोई भी अपना फंड वहां पे बाउंड नहीं करेगा, वो इस इकोनॉमी के अंदर ही जो है वो फंड मूव करेगा और डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है जी। और ये मुझे बताएं कि आपने कहा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंपोर्ट से ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी प्राइसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो ये आपकी इंपोर्ट्स पे कोई ड्यूटीज लगी हुई हैं कि आप इसलिए जरा कंपेटिटिव रहते हैं? जी जी, इंपोर्ट पे ड्यूटीज हैं जी। ये कितने % है जी, कोई रफली? सर डिफरेंट है और डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी डिफरेंट है। देखिए वैसे तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 10 to 15% चल रही है और चाइना में उनको एफटीए के अंदर इसको रिलैक्स किया गया है, लेकिन फिर थोड़ी बहुत अदर अल्टरनेटिव्स उन्होंने यूज किए। एक्चुअली मेजर इसका एलिमेंट ये होता है कि ग्लास इंडस्ट्री में जो ड्यूटी चार्ज हो रही होती है वो इन डायरेक्टली उसकी वैल्यू पर्सपेक्टिव में नहीं आ रही होती, वो इसके वेट के साथ उन्होंने एक वैल्यू सेट की हुई है कि इस वेट के ऊपर हम लोग इसको इसमें असेस करेंगे। तो ग्लास जब मूवमेंट होती है तो वेट पर्सपेक्टिव में इसका वो काफी ज्यादा बन जाता है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ग्लास नहीं मूव कर रहा। जो हम लोग टीपी वैल्यू कह रहे होते हैं, जो असेस वैल्यू आ रही होती है वो वेट के साथ गवर्नमेंट ने लिंक किया हुआ है। ठीक है जी। और आपकी जो फर्नेस है इसकी लाइफ कितनी होती है तकरीबन? देखिए 7 to 8 ईयर्स के नियर अबाउट हो रही होती है जी फर्नेस की। इसके बाद क्या मेजर कैपेक्स करना पड़ता है कि छोटा मोटा इसके अंदर करना पड़ता है आपको इन्वेस्टमेंट? देखिए जितनी फर्नेस की कैपेसिटी होती है उसकी सारा जो मेजर स्टील स्ट्रक्चर है वो तो वही रहता है, अनलेस कि आप उसका कोई डिजाइन मॉडिफाई कर रहे हो या फर्नेस की कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हो। बाकी ये है कि फर्नेस की जो उसकी ब्रेक्स या उसका जो किलन की जितनी भी ब्रेक्स वगैरह होती हैं वो सारी आप चेंज कर रहे होते हैं और आगे जो मशीनरी है उसको ओवरऑल कर रहे होते हैं, तो उसकी कॉस्ट आ रही होती है। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन ये मेरा था कि फ्लोट कास्ट तो आपने कहा है कि लिंक्ड है विद कंस्ट्रक्शन सेक्टर, तो जो टेबल वेयर का सेगमेंट है ये किस चीज के साथ ज्यादा, ये इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है या क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में तो नहीं है? आपने बहुत बहुत अच्छा यानी आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जब पॉकेट में पैसे होंगे तो ये चीजें मूव करेंगी, वरना इन्फ्लेशन सबसे बड़ा इसको हिट कर रहा है जी। वैसे अगर आप ठीक है जी। मैरिड और हैं तो फिर इसका और भी अच्छा जवाब हो सकता है। और ये लास्टली बताएं कि आपके सेल्स में आपने कहा था 55% फ्लोट ग्लास होता है ऑन एवरेज और 45% टेबल वेयर का है सेल्स में मिक्स? जी जी, वो तकरीबन आप यही समझेंगे इसी के नियर अबाउट ही चल रहा होता है, तो 5 से 10% का गैप होता है दोनों में ना। ठीक है जी, चले, थैंक यू जी। थैंक यू। मैं लास्ट में वकार साहब को दावत दूंगा जी कि अगर कोई क्लोजिंग सर अपने रिमार्क्स अपने देने हैं तो फिर वो दें और फिर हम अपना सेशन कंक्लूड करें। सर वकार साहब। मेरे ख्याल में उनसे राब्ता नहीं हो रहा। एक मिनट। वकार साहब आपको आवाज आ रही है सर? चलिए सर, मेरे ख्याल में काफी क्वेश्चंस के काफी हद तक आंसर्स हो गए। कोशिश की है हम लोग ने कि आपके जो आपको किसी ना किसी हद तक सेटिस्फाई कर सकें। हाँ जी। चलें जी, अगर आप इजाजत दें तो सेशन को कंक्लूड कर लें सर। चलें सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।